So, good evening, everyone. I am Pooja Upadhyay, and I am the Branding and Marketing Head at Smart Training Consultancy Services. Today, on behalf of Senfinity, we have our new Rubaru session with a very, very famous personality. This person, we all have known him, we all have heard about him, and he is very famous in this industry. और आज वो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं और उनके बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूंगी. इनका विजन है, he has a life vision. His vision is to see my people live in peace, happiness and prosperity, having abundance of health, wealth and relationship. So ये है इनका विजन और ये इसी विजन के लिए काम करते हैं दोस्तों. इनका लाइफ का एक मिशन भी है और वो मिशन है to help 1 lakh families to achieve their financial, real estate and education goals by my products and services of insurance, investments, real estate and training by 2026. ये इनके लाइफ का मिशन है, ये उनके लाइफ का एक गोल है जिनके लिए वो रोज उठते हैं, जिनके लिए वो जी रहे हैं. इन्होंने अपनी लाइफ में कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं and I would like to name a few milestones in front of you all. He started with LIC agency as a mission, not commission in 1991. Acquired knowledge through training and courses like RFP, AMFI, IIF, SERT, designed many schemes for benefits of customers, designed concepts of selling 10 policies to one person. Became #1 agent of the world by selling 12,500 policies in 1 year. Became 3 times #1 agent of the country. Have an office of 100,000 square feet with technology. Entered in real estate business 10 years ago. Started training to insurance agents from this year. Wow, that's a lot about him. And 80% people do only 20% financial planning. 20% people do only 80% financial planning. What about you? So this is something that Mr. Sudesh Kavlekar is going to talk about. It gives me immense pleasure to invite and call upon over here Mr. Sudesh Kavlekar, who will help us guide a little and talk about his wisdom and share few wisdom with us today. Hi Sudesh sir, very good evening. Good evening, namaste. Namaste sir, how are you? I'm great. Okay, so Sudesh sir, I have listed down थोड़े questions और like जो मैं ही नहीं but हमारे सारे Senfinity के परिवार members और कई लोगों ने you know वो उनमें एक क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की और एक क्वेश्चंस के आंसर जानने की. तो हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो हमने लिस्ट डाउन किए हैं जो मैं आपको अब पूछने जाऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप उनके जवाब देना सो देन यू नो ये वीडियो जो है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपके बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं. सो सुदेश सर, इफ यू गिव मी योर परमिशन, कैन वी स्टार्ट? Yeah, sure. Okay, so Sudesh, my very first question to you is, your best sales performance was to sell 12,000 in 1 year. Now to do 12,000 policies, we have to sell 32 policies in 1 day non-stop. How is it possible? How is something like this even possible, Mr. Sudesh sir? Yeah, that's a good question. And that was my one of the best selling in my lifetime. Yes. I did not sell after that much policy. 12,500 policy in a year. And I think if you go by traditional, if you call 10 people, you get 1 policy. And if I do the same thing, अगर मैं वैसे ही काम करता 10 लोगों को कॉल करके एक पॉलिसी मिलता तो मुझे कितने साल लगते मालूम नहीं, 12,500 पॉलिसी करने में. तो मैं ये करते करते मेरे लाइफ में मैंने ऐसा मालूम किया कि अगर हम 10 लोगों को मिलके एक पॉलिसी कर दे तो क्यों ना हम एक आदमी को मिलके 10 पॉलिसी उल्टा करें. That is to make a converse of the law of average. We call it as a law of average. तो ऐसे करते करते ये जो मैंने पॉलिसी किया तो इसमें 2 ही आदमी थे. एक आदमी से मुझे 10,000 पॉलिसी मिला और एक आदमी से मुझे 2,500 पॉलिसी मिला.
तो उस ईयर मैंने 2 ही आदमी से करीब 12,500 पॉलिसी किया था। Wow, that's a huge number. Okay, that's really nice. Thank you so much, sir, for answering my question. I will quickly move on to my second question without wasting any time. Normal agent formula is 10:1, but your formula is 1:10, which is very interesting. How do you do it? नहीं, ये एक बहुत करीब मेरे ख्याल से 13 सालों का परिणाम है। जब मैंने एजेंसी लिया था 91 में, तो ये मिशन नॉट फॉर कमीशन, यही ऐसे ही मैंने लिया था। तो ये काम करते करते जब मैं एक आदमी को मिलता था या 10 आदमी को मिलता था तो एक पॉलिसी मिलती थी, और कई बार मुझे एक आदमी ने मुझे 2 भी पॉलिसी दिया था, कई आदमी ने मुझे 4 भी पॉलिसी दिया था, यानी कि अपने फ्रेंड के, अपने परिवार के। तो ये करते करते मुझे ऐसा साक्षात्कार हो गया कि अगर हम 10 आदमी को मिलके एक पॉलिसी करते हैं तो क्यों न हम एक आदमी को मिलके 10 पॉलिसी करें। तो ये जब मुझे साक्षात्कार हुआ तब मैंने उसके तरफ से काम करना शुरू किया, और 13 सालों में मैंने कई बार एक आदमी से 50 पॉलिसी लिया, एक आदमी से 100 पॉलिसी लिया, और करते 2003 में मुझे ये 10,000 का पॉलिसी मिल गया, जो सबसे ज्यादा पॉलिसी था। तो मेरा मंत्र यही था कि यू हैव टू डू सम हटके। अगर आप ट्रेडिशनली अगर करते हैं तो आपको वही पाएगा। इफ यू डू द सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इफ यू डू समथिंग डिफरेंट देन यू गेट द डिफरेंट रिजल्ट। तो ये उसका परिणाम है। Wow, sir, that's really like one journey, and this is like something very commendable. So yeah, okay. So sir, I'll now quickly go to my third question to you. That is, it's really very difficult to do prospecting even for 100 lives. Very difficult. And it must be crazy to prospect 1,000, 2,000, 10,000. How do you manage to do something like this? इसमें बहुत सारी चीजें आती है। पहले तो मेरे ख्याल से रिलेशन सबके साथ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इज रिलेशन, क्योंकि मुझे जो एक से ज्यादा जो पॉलिसी मिला है उससे मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था, यानी कि जैसा फैमिली रिलेशन जैसा था। भले वो दूसरे परिवार के हो बट वो अपने परिवार के जैसे हो। तो जो मैं वो 10,000 पॉलिसी का मैं आपको बताता हूँ। तो जिसने मुझे वो दिया, ही इज माय फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड। उनका सबका फाइनेंशियल प्लानिंग मैं सालों से करता आया हूँ, और ये एक दिन का ये नहीं है, उसके लिए साल गुजरे हुए हैं। उसके साथ रिलेशन डेवलप करना, उसको जो चाहिए वो दे देना चाहिए, माने फाइनेंशियल में, प्लानिंग में, उसका जो गोल्स है उसको अचीव करने में जो चाहिए वो करना। और ये आदमी ने मुझे एक बड़े आदमी से एकदम पहचान करा के दे दी कि वो बोला कि ही इज मिस्टर सुदेश कवलेकर एंड ही इज डूइंग इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग, ही विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल। तो मुझे उसने एक बार बुलाया, and then he called me, and then he gave me, first year he gave me 2,500 policy, and next year he gave me 10,000 policies. तो इसमें एक रिलेशन जो है वो काम आता है। So we have to do that one. Second, टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है, पहले साल में जो मैंने 12,000 पॉलिसी किया था वो सब मैन्युअली फॉर्म भरना, मैन्युअली कीनिंग करना, मैन्युअली जाकर सबका सिग्नेचर लेना, ये सब मैन्युअली किया था। बट सेकेंड थर्ड ईयर में जो मैंने 8,500 7,500 जो पॉलिसी किया वो सब विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग भी किया। तो आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। सेकेंड, थर्ड इज टीम वर्क। आपके पास बहुत अच्छी टीम वर्क होनी चाहिए। मैंने उस समय बहुत अच्छी टीम डेवलप की थी, जो being it was a customized and it was for a shorter period. I did not employ that much people, but मैंने हायर किए थे जो कॉलेज स्टूडेंट रहेंगे या और किसी के थ्रू। Like you mean freelancers? फ्रीलांसर टाइप ऐसे करके मैंने हायर किए थे, क्योंकि वो छोटा यानी बहुत कम समय का काम था ना। सालों साल तो होता नहीं था, और सालों डे टू डे बिजनेस नहीं था वो, एकदम 10,000 पॉलिसी आया। तो ऐसी कई बातें जो है जिसके माध्यम का मैंने उपयोग किया,
एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग मैंने बहुत किया था, एजुकेशन मैंने लिया था, जैसे कि अपने लाजरस सर है, उसका मुझे बहुत उस समय उपयोग हुआ था। आई मेट हिम इन 1998, तो उसके बाद से अपना रिलेशन चालू हुआ उसका। बहुत बहुत मैंने आगे मैं बताऊंगा, शायद आपका क्वेश्चन उसके ऊपर रहेगा ही। 100%। ओके, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिलेशनशिप, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, आपका प्रेजेंटेशन, ऐसे कई बातें हैं जिसका उपयोग करके मैंने ये सब किया। एंड ऑफ कोर्स जरा हटके, नॉट नॉर्मल जो 80% जो एजेंट करते हैं उससे नहीं, अपना कुछ उसमें ऐड करके किया, इसीलिए वो सब सफल हो गया। 100%. This is amazing, sir. Like each question and the answer of yours is just mind blowing. It's like a learning for me. I'm learning so much right now with you. Okay, so I will take you to my next question, sir. So this is a very important question today for anybody and everybody, not just for insurance professional, but I think people in any industry. How can one develop a leader to give maximum policies? How can someone do that? How do you develop a leader? Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मैं अभी जो बिजनेस करता था, मैंने आपको बताया कि हटके करता हूँ और एक आदमी को 10 पॉलिसी भेजता हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरा उसके लिए एक मंत्र है कि सेल टू इंडिविजुअल थ्रू लीडर्स। ओके, would you like to elaborate? सेल टू इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल की हमको पॉलिसी करनी है, बट अगर हम हर एक को इंडिविजुअल को अगर हम मिलते हैं तो वो बहुत देर होगा, बहुत समय लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आई एम सेलिंग थ्रू लीडर्स। मैं एक लीडर को पकड़ता हूँ या डेवलप करता हूँ या क्रिएट करता हूँ या जिसको ढूंढता हूँ, बाद में उसको कस्टमाइज डेवलप करता हूँ और उसके थ्रू उसका जो नेटवर्क है उसको मैं सेल करता हूँ। ओके, हाँ, तो वो जो लीडर्स है वो ऐसे मेरे बहुत लीडर है जिन्होंने मुझे, एक लीडर ने 10 पॉलिसी भी दिया है और एक लीडर ने मुझे 10,000 भी पॉलिसी दिया है। उसमें ऐसे भी है कि जिन्होंने मुझे 8,500 दिया, 7,500 दिया, 500 दिया, ऐसे। और उसको डेवलप करने में साल लगते हैं, एक दिन में एक रात में होता नहीं वो। तो पहले वो मालूम पड़ना चाहिए कि कौन लीडर है। हर एक तो लीडर नहीं होता, बिकॉज हम जैसे कहते हैं कि देर आर इन दिस वर्ल्ड देर आर ओनली 20% ऑफ द पीपल हु आर स्मार्ट, और जिसे हम कहते हैं कि जो हटके रहते हैं, जो लीडर्स रहते हैं। सभी लीडर्स नहीं होते, 80% तो नॉर्मल, एंड दिस 20% आर एबनॉर्मल पीपल। आई कॉल्ड इट एज एबनॉर्मल पीपल। सो इनको ढूंढना है, इनको डेवलप करना है और इनसे बिजनेस भी लेना है और उनको भी उसका क्रेडिट भी देना है, ये सब करना है। तो मेरे पास ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं कि जिनको मैंने ढूंढा, जिन्होंने मुझे भी ढूंढा, ऐसा दोनों भी हो गया। और इनको डेवलप करते करते मुझे पहले उन्होंने 1 पॉलिसी दिया और अंत में मुझे उसने 500 पॉलिसी दिया, 1000 पॉलिसी दिया, और दोनों तरफ से, यानी कि लेटरल भी डेवलप किया बिजनेस और हॉरिजॉन्टल भी बिजनेस डेवलप किया। यानी कि एक आदमी से उसका भाई, उसकी फैमिली और बाद में उसके फ्रेंड्स, उसके एम्प्लॉइज, ऐसे भी। तो ऐसा पूरा डेवलपमेंट ऐसा किया था, एंड इट इज ए कस्टमाइज। सेम मंत्रा हर एक आदमी के लिए नहीं होता है। तो ऐसा करके मैं दिया। ज्यादा मैं अपने 3 तारीख जो अपना ये है सेंफिनिटी का इंश्योरेंस मेगा लॉन्च जो है, उसमें मैं थोड़ा रिवील करूंगा क्या क्या कैसे किया। also tell some of the examples also. Yeah, 100%. We really look forward for that. So, sir, now this brings me to the next question, and this question I personally would want to know from you more than the viewers. That is, Lazarus, sir, Mr. Lazarus Dias has been your mentor and coach. How has he helped you to progress from an ordinary agent to number 1 agent in policies, like, you know, in India? Like, how has he done that? And I don't know how much of a big role can a mentor play in your life. I really want to know about this. No, it is amazing. That journey was amazing. It is not one day show. As I told you that I met him in 1998. तो मेरे ख्याल से आज से 24 साल पहले मैं गया था जोनल ट्रेनिंग में मुंबई में। तो उधर वो उनका इनकम टैक्स के ऊपर लेक्चर था। तो
मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा. So then after the lecture I met him personally and I interact with him. और जैसे जैसे मैं उनके साथ बोलता गया था मुझे पता चला कि यहाँ मुझे अगर कुछ दे सकता है तो ये आदमी मुझे कुछ दे सकता है. And he can make me. So then I developed a relation with him. और शुरू में मुझे याद है कि मैं गोवा से मुंबई में रेलवे से जाता था. रात को सुबह उसके घर जाता था, उधर स्नान वगैरह करके हम बैठते थे पूरा दिन और मुझे वो होमवर्क देता था और ये सब होमवर्क करके रातों रात फिर से मैं रेलवे से घर आ जाता था. एंड नेक्स्ट मंथ अगेन उसका जो होमवर्क दिया था उसके ऊपर काम करके फिर से जाता था. ऐसे साल 2 साल 3 साल अपना चालू था. और ये करते समय मैंने उनका गोवा में भी उनका बाकी एजेंटों के लिए भी ऑर्गेनाइज किया था ट्रेनिंग. और जिसमें मुझे याद है गोवा के जो जितने MDRT होते थे उसमें से 50% हमारे बैच में से होते थे. That was an amazing result. मुझे तो फायदा उसका हुआ ही है बट अपने एजेंटों को भी बहुत हुआ है. अगर मैं देखूं तो चार शब्द है, थिंकिंग, राइटिंग, टॉकिंग एंड डूइंग. ये चारों मायने में उसने मुझे परिवर्तन किया है. माय थिंकिंग, वे ऑफ माय थिंकिंग में उसने परिवर्तन किया है, माय राइटिंग में उसने परिवर्तन किया है, मेरे टॉकिंग में परिवर्तन किया है एंड मेरे डूइंग में भी उसने परिवर्तन. मेरे ख्याल से ये 4 अगर मायने में अगर परिवर्तन होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. एंड दैट माय क्रेडिट गोज टू हिम. वेरी नाइस सर. ज्यादा मैं उसके सिस्टम के बारे में मैं बोलूंगा, 3 तारीख को मैं जरूर बोलूंगा. Yes. Okay. That was really unbelievable. I mean, 1998, that's like a long journey. All have come together. And कहीं ऐसे बोलते, उनको ऐसा मन में रहता है कि एक बार अगर किसी ट्रेनर के पास गए तो एक समझो 8 दिन का कोर्स रहता है, महीने का कोर्स रहता है, या कुछ जूम पे कुछ 1-2 घंटे का अगर कुछ सेशन अटेंड किया तो उनको लगता है कि झट किसी परिवर्तन हो जाए उसमें. ऐसा नहीं रहता है. हर एक बात का टाइम रहता है. हर एक बात का समय रहता है जिनको आपको वो देना पड़ता है. पेशेंस देनी पड़ती है, पेशेंस रखनी पड़ती है. then the changes come. Damn nice. Okay, sir. Thank you so much for answering this question. Now, I will take you to my next question, which is, why do you suggest to do more policies when everyone is talking about getting bigger premium and less policies? So why do you suggest that? Okay. वैसे तो ये मेरा बहुत मन का विषय है. तो बट इसमें तीन मायने में इसका विचार करना चाहिए. एक LIC, दूसरा क्लाइंट्स और तीसरा अपने एजेंट कम्युनिटी. अगर हम LIC की ओर से अगर विचार करते हैं कि LIC को हर बार ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी चाहिए, उनको प्रीमियम भी चाहिए बट ज्यादा उनको पॉलिसी चाहिए. तो जिसे हम नंबर ऑफ पॉलिसीज कहते हैं कि वो भी दिखा सकते हैं कि अपना ग्रोथ नंबर ऑफ पॉलिसी में कितना हो गया. तो ये LIC हो गया. क्लाइंट के बारे में अगर हम विचार करें तो क्लाइंट को हर एक उसका गोल अचीव करने के लिए एक ही पॉलिसी नहीं लगती. तो उनको हर एक डिफरेंट समय पे उसको डिफरेंट मैच्योरिटी चाहिए. तो इसीलिए वो ज्यादा पॉलिसी लेता है. एक पॉलिसी लिया और वो मैच्योरिटी हो गई तो उससे मैच्योरिटी से उसका सब गोल्स अचीव नहीं होंगे. तो माने समझो 10 साल के बाद एक मैच्योरिटी, 12 साल के बाद एक मैच्योरिटी, 13 साल के बाद मैच्योरिटी, यानी कि उसका रिटायरमेंट के समय हर साल उसको मैच्योरिटी चाहिए. उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए उसको मैच्योरिटी चाहिए, उसके लड़की के शादी के लिए मैच्योरिटी चाहिए, उसके टैक्स के लिए चाहिए, रिस्क कवर के लिए चाहिए. ये अलग अलग बातें हैं जिसके लिए उसको पॉलिसी मैच्योरिटी चाहिए. तो ये इसके लिए हम अलग अलग उसको मैच्योरिटी. और तीसरा एजेंट अगर ज्यादा पॉलिसी करता है तो उसको कई गिफ्ट भी मिलते हैं, कई रिवार्ड भी मिलते हैं, कई सेशन में उसको एलिजिबिलिटी होती है. तो हर एक समय उसको इसके लिए उसको ज्यादा पॉलिसी करना उसको अति आवश्यक है. तो इसके लिए ये
मैं कहता हूं कि ज्यादा और दूसरा अगर रिलैक्सेशन हो गया, बड़ा पॉलिसी आप समझे 10 लाख का 15 लाख का अगर समझो प्रीमियम दिया और एक बड़ा पॉलिसी किया, और अगर समझो दोनों हो गया, डेथ हो गया तो पॉलिसी बंद खत्म हो गई, और अगर समझो किसी कारण वो पॉलिसी बंद हो गई प्रीमियम न पे होने के, तो उसका भी सब बंद हो गया, तो इसका एजेंट का और ये यानी उसका कमीशन भी गया, इनकम भी गया। तो इसीलिए कम पॉलिसी, कम प्रीमियम की ज्यादा पॉलिसी करना मेरे हिसाब से, इसीलिए मैं ज्यादा करता था। Okay, makes complete sense. Yeah, that's your view on the same, and I really agree to you. Okay, so now we'll quickly go on our next question without wasting any further time, because we have so many of them, and I know we have a time constraint, and I can't give you 100 questions right now. So I'll quickly take you to my next question. That is, how is it possible to sell 12,500, 8,400, 7,600 policies in a year? This is your 3-year record as #1 agent in policies? Yes, and it was continuously making a hat trick. And I think मैंने अभी तक सुना नहीं कि किसी और दूसरे एजेंट ने पॉलिसी के ऊपर हैट्रिक किया आज तक। एंड दैट वाज माय कंट्रीब्यूशन। LIC को रहा, नेशन के उस पर रहा, मेरे हिसाब से। Wow, that's humongous, sir. Yes. Okay, so also I just want to know this. My next question comes very close to this. Do you have any mantra through which you are doing this? या आपके पास कुछ जादू की छड़ी है या क्या है जो आप कर कैसे लेते हो ये? नहीं है, मेरे हिसाब से है। मेरे हिसाब से 21 मंत्रा के 2 सेट है मेरे पास, जिनका मैं उपयोग करता हूँ, और ये मेरे मंत्र नहीं है, मैंने सिर्फ कंपाइल किए हुए। मैं जब देखता था सक्सेसफुल लोगों को, उनकी अचीवमेंट को, उन्होंने कैसा काम किया, स्ट्रगल कैसा किया उन्होंने, और ऊपर नीचे कैसा उन्होंने लाइफ में किया, और उसके बावजूद भी यानी कि टू एक्ट इन स्पाइट ऑफ वरी, फियर, इनकन्वीनियंस, डाउट, मूड, इनके इन स्पाइट भी काम जो करते हैं, उनको मैंने देखा था, उनको मैंने सुना था, उनको मैंने पढ़ा था, और उनकी जो मंत्र है वो मैंने कंपाइल करके, मेरे पास 21 मंत्रा के 2 सेट है। कभी वक्त मिला तो मैं बताऊंगा, बट मैं 1, 2, 3 मंत्रा में बता दूंगा। नंबर 1 इज यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मेरा पहला मंत्र है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मंत्र ऐसा है, यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका अर्थ ये है कि दिन भर आपके मन में जो विचार आते हैं आप वही बन जाते हैं। अगर मेरे मन में विचार दिन भर में आया कि मैं नालायक हूं, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ दूसरे लिए है, तो आप दिन भर में वैसे ही बनेंगे। अगर आपके मन में विचार आता है कैसे भी करके मैं करूंगा, ये मेरे लिए ही है, मैं उसी लिए बना हूं, मैं भगवान का पार्ट हूं, आई एम द पार्ट ऑफ दैट सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर आप ऐसा विचार करते हैं, यानी रिप्लेस योर लिमिटिंग बिलीफ टू द एम्पावरिंग बिलीफ, अगर आप ऐसे करते हैं तो देन एनीथिंग इज पॉसिबल। सो दिस इज माय फर्स्ट मंत्र। सेकंड मंत्र इज इफ यू डू द सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग। इसका अर्थ ये है, अगर आप वही काम करते हैं, कल किया वही काम, परसों किया वही काम, 2 महीने पहले किया वही काम, तो वही काम, कल का रिजल्ट आज मिलेगा, परसों का रिजल्ट वही रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी तमन्ना रहती है कि हमको दूसरा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिले, बट काम हम वही करते हैं, ऐसा कैसा चलेगा? तो ये दूसरा मंत्र है। तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, दैट विल गिव यू समथिंग डिफरेंट रिजल्ट। एंड तीसरा मेरा ऐसे 21 मंत्र है, बट मैं 3 ही बताऊंगा, बाकी कभी वक्त मिला तब बताऊंगा। बाकी आप पर मेगा लॉन्च में मेगा लॉन्च में बता दूंगा। करेक्ट। ओके। एंड तीसरा मंत्र है देयर इज ए कस्टमर फॉर एवरी प्रोडक्ट। ये मेरा मंत्र नहीं है, जो सक्सेसफुल जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि देयर इज ए कस्टमर फॉर एवरी प्रोडक्ट।
एवरी प्रोडक्ट, आप जो भी प्रोडक्ट लाओ उसके लिए आपके पास, आपको वो ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आपको रुकना पड़ेगा जब तक वो आपके पास आता है। आप ढूंढेंगे तो जल्दी मिलेंगे, रुकेंगे तो कब आएंगे वो आएंगे, बट देयर इज ए कस्टमर फॉर एवरी प्रोडक्ट। ऐसे 21 मंत्र है, 21 मंत्र। Wow, sir. Yes, and there are also 12 promises that you have to give to yourself. Every day we give promises to other and we break it, but Yes. you have to give 12 promises to yourself. मैं एक ही promise बता देता हूँ, I promise myself to be so strong that nothing can disturb my peace of mind. ये पहले promise है, यानी कि I promise myself to be so strong that nothing disturb my peace of mind. यानी कि मेरी जो पीस ऑफ माइंड जो है वो बाहर की कोई भी मुझे मेरी टूटा नहीं सकती, ऐसे मेरे को प्रॉमिस देना है। ऐसे 12 प्रॉमिसेस है, तो मैं वो भी मेगा लॉन्च में बता दूंगा मैं। Yes, अभी समय भी we are कम really excited to know. अभी आपने बता दिया 3 मंत्रा, I am so curious to know कि ऐसे और क्या है ये मंत्रास। नहीं, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। We would love to know, sir. Okay. Now, yeah. So now my next question is, sir, अभी जैसे आपने मुझे बताया टेक्निक, स्ट्रैटेजी और एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी एक एक चीजें हैं जो आपने आपके लाइफ टाइम में यूज की है टू रीच टू दिस सर्टेन अचीवमेंट. नाउ माय क्वेश्चन इज, सर, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट यू यूज्ड इन मेकिंग दीज नंबर ऑफ पॉलिसीज? आपने ऐसी क्या क्या टेक्निक्स है, स्ट्रैटेजीज है, क्या चीजों का इस्तेमाल किया जो आप यहाँ तक पहुंचे? बहुत इंटरेस्टिंग। ये बहुत सालों का परिणाम है, एक ही साल में नहीं हुआ है, बहुत सालों का। और जैसे जैसे मैं काम करता गया, उससे मुझे जो इंसाइट मिला, उस इंसाइट से मैंने वो मेरे स्ट्रेटेजीज में, मेरे प्रैक्टिस में, मेरे एक्टिविटीज में मैंने परिवर्तन किया, उसका रिजल्ट मिलता गया। तो दीज आर द डिफरेंट, सम ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। वन इज, मैंने जो शुरू में बताया कि मैं ऐसा सोचता था कि 10 आदमी को मिलके एक पॉलिसी क्यों लेना है, क्यों ना एक आदमी से मिलके 10 पॉलिसी ले लें। तो दिस वाज माय फर्स्ट स्ट्रेटेजी। और मैंने उसको और थोड़ा एक्सटेंशन किया कि सेल टू इंडिविजुअल थ्रू लीडर्स, और मैं लीडर्स को ढूंढता गया और लीडर्स को मैं चेंज करता गया, मोटिवेट करता गया, और ऐसे करते करते मैंने ये किया। ये एक तो था, बट उसका जो सब स्ट्रेटेजीज जो है वो अलग अलग है। मैंने मेरे जो ओल्ड क्लाइंट्स है उनके लिए मैं कंपटीशन लगाता था। कंपटीशन माने गिफ्ट स्कीम उनको देता था। मैं कभी रिबेटिंग नहीं किया, कभी नहीं किया जिंदगी में, बट अपने ही क्लाइंट को मैं गिफ्ट देता था। बाद में आफ्टर टेकिंग पॉलिसीज एंड आफ्टर सम ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के बाद, और वही ऐसे गिफ्ट नहीं देता था, कुछ करो बाद में गिफ्ट मिलेगा। तो मैं दिवाली के समय में प्रीमियम का मैं टारगेट रखता था। आप इतना प्रीमियम डालो और 5 ग्राम का सोना ले लो। आप चतुर्थी के समय आप इतना प्रीमियम डालो और 21 चांदी की दुर्वा ले लो। ऐसा मैं गिफ्ट स्कीम उनको दे देता था। दूसरा, मैंने ये जिसको हम ड्रॉ कहते हैं, लॉटरी कहते हैं, लॉटरी, तो ऐसा मैंने स्कीम किया था जिसमें मैं लगाता था कि आप 25,000 का प्रीमियम डालो, एक कूपन ले लो, और ऐसे 100 कूपन के ऊपर मैं कुछ ड्रॉ का एक वस्तु लगाता था, सामान लगाता था, और उसमें एक आदमी को उसने ड्रॉ निकाला तो एक ही आदमी को वो बड़ा ड्रॉ लगता था। ऐसे मैंने बहुत से ड्रॉ किए, बट सबसे बड़ा जो ड्रॉ किया वो 4 नैनो गाड़ी का था। 4 नैनो गाड़ी मैंने ड्रॉ पे लगाया था, और 25,000 प्रीमियम के ऊपर एक कूपन देता था। 100 कूपन होने के बाद, यानी कि 25 लाख प्रीमियम जब इकट्ठा होता था तब एक ड्रॉ होता था। ऐसे 4 ड्रॉ मैंने किए और 4 मैंने नैनो दिए, और वो मैंने अपने जो सेंट्रल जो एमपी है उसके हाथों से मैंने वो ड्रॉ निकाला था। बहुत बढ़िया वो हुआ था। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। दूसरा और एक स्ट्रेटेजी था, वेरी क्रिएटिव। ये और दूसरा एक स्ट्रेटेजी था कि मैं कहीं माइनिंग एरियाज में जाता था, उनके एम्प्लॉयर के छुट्टी के समय सबको मैं इकट्ठा करता था और उनको मैं प्रेजेंटेशन देता था। देन आई वाज गोइंग इन
फैक्ट्रीज में जाता था, उधर मैं सबको बुला के, मैं मिलिट्री कैंप में जाता है अपना, मेरे मेरे घर के पास ही एक मिलिट्री कैंप है, तो उधर जो ऑल इंडिया के जो नए जो कैडेट्स आते थे, तो उनका इधर ट्रेनिंग था, एक 6 महीना 1 साल तक था। तो उनका शुरू में जब न्यू एंट्री था, तो उनके पास पैन कार्ड भी नहीं था, तो हम उनका पैन कार्ड करने के लिए उधर जाते थे, और वो पैन कार्ड करते समय सबको मैं इकट्ठा बुलाता था और फाइनेंशियल का उनको मैं प्रेजेंटेशन देता था। और मेरे ख्याल से याद है मुझे कि 400 लोगों में से, 500 लोगों में से एक 40 पॉलिसी 50 पॉलिसी ऐसा उस समय इकट्ठा होता था। So that was a group selling also and a strategy of selling. ऐसे बहुत strategies मैंने इसमें use किया। Wow, so this is so creative. I mean, to think in this angle and to like do something like this, it's not just, you know, like making money business, but it's also using techniques and policies and strategies and how to do it. Relationship, like one big takeaway of mine from this whole interview is that you've really built relations with people, which has helped you achieve this target. Like very, very beautiful, very beautiful. Now, sir, I have my very last question, last but not the least. How have you built up systems and processes while doing this? Building systems and processes is something so difficult. Like right now, I am working in an organization and I've been told that I have to build a team. It becomes so difficult to build a team, लोगों को manage करना, उसके साथ एक system process company में लाना, ये सारी चीजें एक साथ में करना, it's just next to impossible. But I don't know, how have you done it? How have you managed to build systems, processes, and what are the type of systems and processes that you build? बहुत है। मुझे एक सेंटेंस याद है, people fails but the system does not fail. Yes, so true. एकदम। और दूसरा मुझे एक सेंटेंस याद है, what brought you here can't take you there. Okay, I would want you to explain this. What brought you here can't take you there. Means आप अगर समझो MDRT किया एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से, तो अगर आपको TOT बनना है तो वही MDRT का सिस्टम आपको उपयोग नहीं आएगा, उसके लिए अलग सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। Yes. Okay, yeah. The same now system, the same thinking, the same talking, the same relation will not be आपको उपयोगी नहीं पड़ेगा। TOT के लिए या डबल TOT या ट्रिपल TOT करने के लिए आपको अलग सिस्टम लेना पड़ेगा, अलग थिंकिंग आपको और ऊपर के लेवल के लेना पड़ेगा। So that is I called what brought you here can't take you there. Wow, yes, 100% I agree to this, sir. तो इसके लिए जो ये सिस्टम, ये जो प्रोसेस जो बनाया है, उसके लिए अगेन मेरा मेंटर जो लाजरस एडाइज, उसने मुझे बहुत मदद किया ये सब करने में। यानी कि टेक इट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग, अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो उसका लिस्ट कैसे बनाना, उसको मैनेज कैसे करना, उसको कॉल करते हैं, वो उन्होंने बोला 10 दिन के बाद कॉल करो, तो उसका मैंने मेंटेन कैसा करना, तो ये प्रोस्पेक्टिंग हो गया। देन प्रेजेंटेशन देते समय कैसे प्रेजेंटेशन क्लाइंट को देना, किस क्लाइंट को क्या प्रेजेंटेशन देना। मुझे ये भी याद है कि अगर एक होल है तो होल में होल ही जाएगा, स्क्वायर में होल नहीं जाएगा, या त्रिकोण में सर्कल नहीं जाएगा। तो वैसे ही क्लाइंट भी होते हैं ना, काइनेस्थेटिक होते हैं, विजुअलिस्टिक होते हैं, ऑडियोस्टिक होते हैं, तो वो ढूंढना पड़ता है कौन कैसा क्लाइंट है और उसके हिसाब से उसको बताना पड़ता है। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स भी उसने डेवलप किया। उसने मेरे को, मुझे याद है कि 4C का जो प्रेजेंटेशन दिया था, उससे बहुत सालों में मैंने उसका उपयोग किया। स्ट्रेटेजी यानी हाउ टू कन्विंस, जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है, वैसे एक 4C कॉन्सेप्ट है, जिसमें 1C इज फॉर क्रिएशन ऑफ मनी, सेकंड C इज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ मनी, सॉरी कंजम्पशन ऑफ मनी, थर्ड C इज कंटिन्यूएशन ऑफ मनी एंड 4C इज कंजर्वेशन ऑफ मनी। ये जो कॉन्सेप्ट दिया, जिसके हिसाब से हम क्लाइंट को बताते थे और उसको एजुकेट करते थे, ये भी उन्होंने मुझको दिया। तो ये एक सिस्टम से जाता था, सब प्रोसेस से जाता था। देन जब हम जिसका पॉलिसी करते थे तो उसको हम एक लिस्ट लगाते थे, चेक लिस्ट करके। तो अभी हमने फॉर्म भरा, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसका लिस्ट, उसके बाद उसका रिक्वायरमेंट लेना है, देन फॉर्म भरना है, देन मेडिकल करना है, ब्रांच में देना है, ऐसा एक चेकलिस्ट रहता था। तो वो चेकलिस्ट भी उसने मुझे दिया। उसने मुझे जो टाइम टेबल अपना रहता था,
वो टाइम टेबल का भी हाउ टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ ये भी सिखाया उन्होंने। हमको तीन प्रकार का काम दिया था, एक फोकस डे, एक बफर डे एंड एक फ्री डे। फ्री डे माने अपनी फैमिली को अब सप्ताह में एक बार होना चाहिए जो फ्री डे होना चाहिए। बफर माने प्लानिंग डे, जिस दिन हम ओनली प्लानिंग करेंगे। एंड फोकस डे माने ओनली मीटिंग डे, क्लाइंट के सामने बैठना। तो ये सप्ताह का 4 दिन रहता था फोकस डे, 2 दिन रहता था बफर डे और 1 दिन रहता था फ्री डे। और मैक्सिमम यानी एरिया वाइज कैसे काम करना, ये सब प्रोसेसेस हमने वो किया था। तो इसीलिए वो हमको वो सबसे एंड देन हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर का कैसा उपयोग करना, ये सब हमने, तो इसीलिए ये सब हमने प्रोसेस डाले थे। अब ये रिन्यूअल का एक रहता है, रिन्यूअल का जो प्रीमियम रहता है ना, वो कलेक्शन करना भी बहुत आसान होता है, बहुत कठिन होता है। तो मेरा अभी जो प्रीमियम रिन्यूअल था उसमें 2 टाइप के पॉलिसीज थे, एक इंडिविजुअल जो हमने एक का करके किया था, और सेकंड ग्रुप में था जो हमने ग्रुप में 200 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का ऐसा किया था। तो ऐसे दो टाइप के रिन्यूअल कलेक्शन हमको हर बार करना पड़ता था। तो हमने उसके लिए प्रोग्राम करके एक सॉफ्टवेयर करके दिया था, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपने एक स्टाफ जो है वो पूरा, यानी कि थोड़े लोग ऐसे होते थे कि जिनको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती थी, वो उनका समय आया प्रीमियम का वो पे करते थे। दूसरे कई लोग थे जो बोलते थे कि नहीं मुझे सिर्फ फोन करो, मैं बाद में जाकर भरता हूँ। तीसरे लोग थे जिनको फोन करना, याद भी करना, कलेक्शन भी करना। चौथे लोग थे जिनको याद करना, वो आकर बाद में ऑफिस में प्रीमियम दे देते थे। तो छठवां एक क्लास था जिनका मंथली ईसीएस से कट हो जाता था। 7वां था जिसका एसएसएस था। ऐसे अलग अलग तरीका। तो ये सिस्टम जो मेरी थी उससे परफेक्ट है। आज भी मेरा उससे काम चलता है। सिस्टम वेरी सिस्टमेटिकली चलता है, कोई टेंशन नहीं। और ये दूसरा उनका नया बिजनेस भी मिलता है 2-2 साल में, 3-3 साल में। आज पॉलिसी किया, उसका फॉलोअप किया, उसको सर्विस दे दिया, तीसरे साल में और एक नया पॉलिसी उसका होगा, नहीं तो फैमिली का होगा, नहीं तो कोई रिलेटिव का, बट होगा पक्का। या तो ऐसा ही अलग सिस्टम प्रोसेसेस हमने डाला था, उसका उपयोग बहुत मुझे अच्छा हो गया। 100% सर। एंड सर दिस इज रियली कमेंडेबल। आपने जो सारी चीजें आज शेयर की है, मतलब आई डोंट नो आपका पूरा लाइफ का लर्निंग्स मैं एक 20-30 मिनट्स में मैं कितना ही जान लूंगी। बट आई रियली लुक फॉरवर्ड सर दैट यू नो हम मिले, लाइक वी हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस, लाइक हाउ यू हैव डन दिस। And sir, I think then to continue this, we have our mega launch that is happening, the Senfinity mega launch. So friends, I would really like to inform you that on 3rd July we have our grand launch of the company named Senfinity, where we have 9 guest speakers, and out of the 9 guest speakers, Sudesh sir is one of them, and it gives me immense pleasure to invite all of you all for this mega launch. I really look forward, Sudesh sir, to like learning more things from you. I just had very minimum time to interview you today, and these are just basic questions that I've asked you, but I am damn sure our friends, our followers, our viewers, they have 10,000 questions like this जिनका आंसर वो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने आपके लाइफ में जो किया है, I don't think anybody has done it till now. Like hat trick, this word hat trick in the insurance industry also, there's something known as insurance hat trick also, which people should know. And yeah, so we should have a detailed discussion on this. तो सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। अभी आप जब मेगा लॉन्च के दिन आ रहे हैं सेंफिनिटी, उसमें लोगों को क्यों आना चाहिए? ऐसा क्या है जो इनको वहां सीखने मिलेगा? ऐसा क्या विजडम है जो इनको वहां पे मिलेगा? तो इनको वहां पे आना क्यों चाहिए? उनका मकसद क्या है? कौन लोग हैं जिनको जरूर ये शो अटेंड करना चाहिए? नहीं, इसमें एक तो मेगा लॉन्च में देयर आर 9 स्पीकर्स। यस। तो जिंदगी का जो मेरे ख्याल से जो ये जो है पूरा अर्क जो रहता है, तो उसमें बाबा मुझे, क्योंकि एक ही दिशा में अगर गए हम तो लाइफ का सब मिलता नहीं, अलग अलग मायने में क्या क्या है वो सब ये एक दिन के इसमें मिलेगा। मेरे ख्याल से इसमें क्वांटम साइकोलॉजी के ऊपर मेरे ख्याल से मीनल पचौरी जी भी बोलेगी। Yes sir, we have so मैं एक बार I'll take you through. We have Mr. संतोष नायर। संतोष नायर जी आ रहे हैं जो यहाँ पे बात करेंगे फ्यूचर शॉक इन फाइनेंशियल सर्विसेज। What is a future shock?
फाइनेंशियल सर्विस में ऐसा कौन सा शौक है जो फ्यूचर में आ रहा है और जो इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था, वो उनके बारे में बात करने वाले हैं. And our legendary Lazarus Dias, who's been in this industry since so many years, he's going to be there, who will talk about the 3 Indias of insurance. Then we have you, Mr. Sudesh Kavlekar ji, वो बताएंगे how he sold 30,000 policies. इन मेरे अगर मेरे स्पीच में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये रहेगा कि आप you will learn how to sell to individual through leaders. ये जो नया कॉन्सेप्ट है my way, there are 2 way, एक ट्रेडिशनल वे है एंड my way है या न्यू वे आप जैसे बोलते हैं. मैं उसको my way कहता हूँ. जैसे मैंने ये किया और ये मैंने एक बार नहीं किया, 1000 पॉलिसी मैंने हर साल मोर देन 10 टाइम्स मैंने सेल किया है. एक साल आप सेल करते हैं तो ये फ्लूक हो सकता है, ऐसा आप बोल सकते हैं. बट आई हैव सोल्ड इट मोर देन 10 टाइम्स. आई हैव डेवलप्ड द सिस्टम. मेरे पास ये तरीका है, मेरे पास जो मैंने बिल्टअप किया है और मैंने किया है 10 बार. तो मैं उसमें आपको मैं वो दिखाऊंगा जिससे आप यू कैन लर्न, यू कैन यूटिलाइज एंड यू कैन ऑल्सो सेल मोर देन 1000 पॉलिसी अ ईयर. सो दैट विल बी माय कंट्रीब्यूशन. Yes, sir. This is one major thing that we are looking forward to. Then we are going to have Vineet Bansode, sir, and he will see client signature and sell insurance. I mean, this is something I've never heard in my life. Like, see the sign and then sell the insurance. Graphology. Yes, this is such a big subject, and we are really looking forward to learning this. Then we have Murli Mehta ji, जो बात करेंगे changing dynamics of relationship in insurance sales. Dr. Kutti will put some life into life insurance. So this is what he's going to cover. Then we have R.K. Shetty ji. We do not have any competition in life insurance sales. He will talk about that. And Mr. Logan Naidu, how to handle the future shock in selling insurance. So these are the topics that we will be covering on our mega launch. I request all of you to register right now on the link below. And if you have any further questions, any doubts, you all can reach us out to the number and email ID added below. And I am going to see all of you all on the mega launch on 3rd July with Mr. Sudesh Kavlekar ji. Yes. My personal request to all of you, kindly register and take the benefit, this golden opportunity. And it's totally free. You don't have to pay anything now. Never. Yes. One day program which is free of cost. So yes, sir, I am going to directly meet you now on 3rd July. Yep. Okay. Thank you, Sudesh, sir. Thank you. Thank you. My pleasure. Thank you.